Pritam Kashyap. Today I have come to the organization of a company which is not only in the lead of the market, but it is a few company in India who inspire a strong set of value, believes in what they say, and ACE is one among them. And leading material handling company in construction equipment with majority of market share in mobile cranes and tower cranes. And today with us is Ashok Anantharaman, Chief Operating Officer of ACE. Here, Namaskar sir. Namaskar. Thank you for coming. Yeah. Sir, so I have a question like recently आपने एक ट्रैक्टर मार्केट सेगमेंट में लॉन्च करा जिसमें न्यू जनरेशन ऑफ ट्रैक्टर की बात थी जो अभी हाल फिलहाल संसद में भी आपने सुना कि किसान बिल को लेकर और इन सब चीजों को लेकर काफी तनावपूर्ण माहौल रहा है पंजाब हरियाणा में लेके। तो उससे लिए मेरा एक सवाल है, जो आपने न्यू ट्रैक्टर जनरेशन V65 V2 जो लॉन्च करा है वो आपके जो अभी आने वाले किसान बिल और कैसे इन सब चीजों को बेहतर है आपके पुराने मॉडल से, और क्या ये मतलब किसान भाइयों को और लोगों को मदद कैसे कर सकता है? आपने बोला तनावपूर्ण चल रही है, पार्लियामेंट में तनावपूर्ण हो रही होगी, बट जो ट्रैक्टर मार्केट में जो आग लगी हुई है, ट्रैक्टर मार्केट जो जिसकी मूवमेंट लास्ट मंथ में 28% हुई है सितंबर में, अगस्त में थी 70%। सो फर्स्ट हाफ में ट्रैक्टर जो खरीदारी हुई है 12% इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर आप अप्रैल में देखें तो कुछ काम नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, राइट? तो मई जून जुलाई अगस्त में जो डिमांड आई है वो 12% मोर देन लास्ट ईयर है। एंड ये क्यों आई है? ये इसीलिए आई है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत जबरदस्त हुई है क्रॉप्स की, राइट? एमएसपी जो गवर्नमेंट ने दी है वो एक मेजर स्टेप थी जिससे फार्मर्स में कॉन्फिडेंस है। थर्ड थिंग, जो न्यू सीजन के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया है एमएसपी, उससे कॉन्फिडेंस है। तो उसके कारण ट्रैक्टर मार्केट स्टार्टेड बूमिंग। प्लस एक और इम्पोर्टेंट ये चीज हुआ कि जो लोग माइग्रेंट लेबर्स जो घूम रहे थे, जो वापस अपने अपने प्रदेश गए, वो लैंड को डेवलप करके उन्होंने शुरुआत की वापस इन अ बिग वे, एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन हैज बीन एट द मैक्सिमम, राइट? ये आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री की रूपरेखा है over the last 6 months, and we expect that means in the first 6 months 4 lakh tractors have got sold in India. 4 lakh tractor India में बिके। So this was in the sale in the lockdown period. Or everything between April and September. So if you see the lockdown started on March 25th. Yeah. Okay. उसके बाद 21 दिन लॉकडाउन थी. So literally March. So you end the year March, financial year is over. The new financial year starts from April, which was a zero, correct? And then you started off May. So April to May, most of the states were having state lockdowns. So literally, everything has started off on end of May. So between May and September, 4 lakh tractors have got sold. 4 lakh tractors have got sold in the market. Okay? So that the industry perspective. Coming to ACE, जैसे आपने बहुत क्लियरली कहा, ACE is not only a tractor manufacturer or a construction equipment manufacturer. ACE is a company which provides solutions for farm mechanization. It provides solution for construction equipment companies, okay, and it provides solutions for material handling equipment companies as well as road and highway equipment. So therefore, this is the 4 important verticals which ACE has been working for the last 25 years. So 25 years we've been serving the nation with indigenous products, updated products on a regular basis, because the chairman जो Mr. Vijay Agarwal है, उनका clear mission है, you need to have a customer centric approach. You need to be very very close to the customer and उनके need जो है उसको हमें प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा। तो इसी सोच और उनका एक और इम्पोर्टेंट चीज है, विजन है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और जो भी स्किल इनिशिएटिव्स हमें करना है उसे हमें जनरेट करने पड़ेगा मार्केट। सो ये पर्सपेक्टिव को देखते हुए वी लॉन्च द 6565 V2। नाउ इसकी क्या खासियत है? सो द फर्स्ट थिंग इज इट हैज द हाईएस्ट पावर इन इट्स कैटेगरी।
61 horsepower 4-cylinder naturally aspirated engine. So first thing is power. और इसके साथ next thing is इसका जो बैकअप पावर है और called the PTO power which is 52 horsepower, again the highest, one of the highest in this class. सर तो आप मतलब बताइए कि एक नॉर्मल किसान है वो मतलब अभी मैं हाँ तो मुझे एक ट्रैक्टर को महिंद्रा का हो गया और आपने क्या मतलब तो मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। तो मैं पहले आप 3-4 फीचर बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों ये ट्रैक्टर इस कैटेगरी में से, जहाँ पे महिंद्रा इन कैटेगरी में चार पांच इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। महिंद्रा प्लेयर, जॉन डियर प्लेयर, जैसे हायर हॉर्स पावर में जाते रहते हैं मल्टीनेशनल्स कम इनटू द पिक्चर, बिकॉज़ इंडिया में 5-6 साल पहले तक केवल 45 हॉर्स पावर और 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स ही बिकते थे, यही 30 से 45 हॉर्स पावर। जैसे मल्टीनेशनल्स आए, जॉन डियर आए, सामे आया, न्यू हॉलैंड आया, तब हायर हॉर्स पावर स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी। ओके, उस पॉपुलैरिटी गेम में महिंद्रा और टाटा स्लो थे। Ace have now taken first command over all the in this horsepower range, और जो हमने प्रोडक्ट जो दिया है, अगर आप इसके फीचर्स सुनेंगे, we are far ahead even of multinationals. Okay, तो जैसे मैं first is the 4-cylinder naturally aspirated engine. दूसरे लोगों को देखेंगे उनके 3 cylinder engine, right? Second thing is they have सर मेरा एक पे 2 सवाल है कि मतलब जैसे हमारे किसान भाई तो पढ़े लिखे मतलब कम होते हैं और उनको ये हॉर्स पावर जैसे इतने बड़े शब्द आपने बोले और सिलेंड्रिकल, तो उनको समझिए थोड़ा आप मतलब और आसान टर्म्स में बताइए कि क्या वो जब वो दो चीज देखेंगे कि इसमें दम कितना है, राइट, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी माने डीजल कितनी खाती है, ये क्या सब उठा सकती है, माने क्या सब पुल कर सकती है, टॉर्क कितनी है इसकी, ठीक है जी। चौथी चीज ये है कि कितनी आसानी है काम करने में, तो आसानी काम करने में हमने जो दिया है 12 जो सिंक्रोनस शटल गियर बॉक्स दिए, 12 गियर फॉरवर्ड और 12 गियर रिवर्स, और उसमें लो, मीडियम और हाई दिया हुआ है। उससे क्या होता है कि किसान को केवल लीवर से ही वो एडजस्ट कर सकता है, उसको क्लच में पैर दबाना नहीं पड़ेगा और उसको गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये इस ट्रैक्टर की खासियत है। तो जो एप्लीकेशन करते हैं ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रैक्टर किस एप्लीकेशन में कामयाब है। बीज जो बोते हैं उनके लिए एक इक्विपमेंट, एक इंप्लीमेंट है कॉल्ड हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। उसके लिए स्पीड्स जो हैं वो स्पीड्स इस ट्रैक्टर से मैच्ड है। तो बीज डालना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर बीज ठीक ग्रो में नहीं डलती है तो किसान के लिए लॉस होती है। तो जब किसान देखता है कि कैसे कौन से स्पीड में चलती है और कौन से स्पीड में वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, उसकी स्पीड जैसे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इस ट्रैक्टर में इंडक्ट की गई है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज है जैसे उसको चलाने के लिए हमें एक डबल क्लच चाहिए। डबल क्लच माने बिना सब लोगों का डुअल क्लच है, हमारा डबल क्लच। उससे क्या हो रहा है कि इस ऑपरेशन में उसको सहूलियत हो रही है, आसानी हो रही है इस्तेमाल करने में ट्रैक्टर, ठीक है जी। जैसे वो इस्तेमाल करता रहता है आसानी से, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो हर एक चीज में बिकॉज ऑफ इजियर ऑपरेशन द योर मेंटेनेंस कॉस्ट्स आर लो, योर लाइफ इज मोर, वेयर एंड टेयर इज लेस हमारे ट्रैक्टर। तो ये सहूलियत है कि जब वो फाइनली जब देखता है अंत में कि मैंने कितना पैसा दिया है, मैंने कितना पैसा खर्च किया है ऑपरेशंस में, मैंने मेंटेनेंस में, और फाइनली मेरे हाथ में कितना बचता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। वो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हमारी ट्रैक्टर में, इस ट्रैक्टर में वन ऑफ द बेस्ट है इस क्लास में। और जो हमने फीचर्स जो दिए हैं, जैसे कहा ये जो 3-4 फीचर्स जो दिए हैं वो किसी ट्रैक्टर इस क्लास में नहीं है। और इस क्लास में जब बात कर रहा हूँ तो जॉन डियर, न्यू हॉलैंड, सामे, महिंद्रा, सोनालिका, ये पांचों को मैं कंपैरिजन करके कर रहा हूँ कि हमारी ट्रैक्टर इन सब में आगे है इन मैन्युफैक्चरर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी जो ट्रैक्टर जो व्हील बेस है वो व्हील बेस थोड़ी बड़ी है और सबसे बड़ी है, जिसके कारण वो उठती नहीं है। जैसे स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, क्योंकि जितनी लोड होती है और जितनी पुलिंग पावर होती है उसके लिए स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी हम ये ट्रैक्टर दे सकते हैं, दे सकती है फार्मर। आपने मतलब बताया कि ये है, तो इसमें मैंने जब पढ़ा तो आपके इसमें लिखा था कि V2 has a sleek design। तो sleek design से मतलब क्या फायदा होगा,
के साथ। ठीक है, स्लीक डिजाइन जैसे मैं बोलता हूँ कि पोर्श की डिजाइन है या लैम्बोर्गिनी की डिजाइन है, तो स्लीक डिजाइन को केवल वो सोशल स्टेटस है फार्मर की, कि हम वो नॉर्मल ट्रैक्टर जो फ्लैट ट्रैक्टर ना, ट्रैक्टर नहीं है ये, जब फार्मर खरीदता है तो उसके लिए वो सोशल स्टेटस है, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पूंजी, वो एसेट है उसके लिए, ठीक है। जो और आज के फार्मर यंग फार्मर है, पहले के फार्मर की एज ज्यादा थी, अब आज की फार्मर की एज इन द रेंज ऑफ 35-36 है। वो क्या चाहता है कि जैसे नई गाड़ियां देखता है ना, नई डिजाइन देखता है, तो वो भी सोचता है कि मैं भी ट्रैक्टर चलाऊं जो स्लीक हो, जो डिजाइन है ये स्लीक है, एरोडायनामिक डिजाइन कहते हैं इसको। तो उसको हमने, अगर आपको ट्रैक्टर आपने देखिए तो ये ज्यादा, ये देखिए ये पूरी स्लीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग फोकस करते हैं वो सेफ्टी है, और सेफ्टी इसीलिए बोला, ये है रॉप्स, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम, ये 4 व्हील ड्राइव। तो रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ हम कैनोपी जब देते हैं तो उसको फैसिलिटी मिलती है फार्मर को, एक तो धूप, रेन और से प्लस सेफ्टी है, अगर कुछ भी हो जाता है, टॉपर भी हो जाती है तो ये सेफ करती है, राइट। सो दिस इज अ 2 व्हील ड्राइव। ये जो है ये 4 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव इसी तभी हेवी हॉलेज में इस्तेमाल होती है और हिल्स में इस्तेमाल होती है हेवी हॉलेज, ये 4 व्हील ड्राइव। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ स्लीक डिजाइन, दिस इज एन एर्गोनॉमिक डिजाइन, जिससे एक तो कस्टमर को अच्छा लगता है कि नॉर्मल ट्रैक्टर, नॉर्मल जो ब्लॉक साइज ट्रैक्टर उसके समान ही है, प्लस जो जब वो चलाता है ट्रैक्टर तो जो एयर फ्लो आती है एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ, वो ऐसे डिसिपेट हो जाती है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होता है। सो अगर आप देखें ये स्लीक डिजाइन इज अवेलेबल एवरीवेयर, इट इज नॉट ओनली फॉर अस। अगर आप देखें सभी ट्रैक्टरों में इस श्रेणी में आपके पास एर्गोनॉमिक एंड स्लीक डिजाइन है। जैसे आज लोग एसयूवी देखते हैं तो एसयूवी का एक नॉर्मल डिजाइन होता है कि 5 सीटर होनी चाहिए, 7 सीटर होनी चाहिए, ऐसे कर्व होनी चाहिए, तो सिमिलरली वो भी एक एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। मतलब ट्रैक्टर्स में भी आजकल जैसे ऑडी, मर्सिडीज एब्सोल्युटली मॉडल्स आ रहे यस। हैं, तो क्योंकि किसान इस ट्रैक्टर पे अंदाजा 8 से 9 घंटे स्पेंड करता है रोज का रोज, राइट। सो ही फील्स दैट इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिम, और वो ट्रैक्टर उसकी सोशल स्टेटस और उसकी सोशल स्टैंडिंग सोसाइटी में डिसाइड करती है। हाँ, सो ये बहुत, आप जैसे आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो इट इज नॉट द कार, इट इज अ ट्रैक्टर। कौन सी ट्रैक्टर है, कौन सा हॉर्स पावर ट्रैक्टर है आपके पास, कौन सी टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स है। सो देयरफॉर ट्रैक्टर में हमें सब देना पड़ता है, म्यूजिक सिस्टम देना पड़ता है, राइट, क्योंकि वो 8 घंटे वो स्पेंड करता है इसके ऊपर। सो देयरफॉर एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक्टर। और हमारी क्या व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज की प्रोवाइड कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट। आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास पावर स्टीयरिंग है, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर स्टीयरिंग ऑन ऑल ट्रैक्टर्स, क्योंकि ईज ऑफ ऑपरेशन, जैसे आप हमारी गाड़ी और अगर आप हमारी ट्रैक्टर चलाएंगे और कोई भी कार चलाएंगे, इट्स सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द स्टीयरिंग एबिलिटी, द पावर स्टीयरिंग थिंग। सेकंड थिंग, जब वो बैठता है तो उसके पास कंफर्ट होनी चाहिए, ऐसी कंफर्ट होनी चाहिए। तो हमने पूरा क्लीन कर दिया है प्लेटफॉर्म यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर नथिंग इज देयर। पहले क्या होता था कि आप बैठेंगे तो यहाँ पे लीवर आती थी, लीवर हिट करती थी, वो सब क्लीन हो गया। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आप ऐसे बैठे हुए, जो पेडल्स हैं आपके, पेडल्स इज हैंगिंग पेडल्स, तो माने आप बैठे हुए आप पेडल्स को प्रेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था, उसको आगे बैठ के करके उसको द थिंग वाज फिक्स्ड, पेडल्स वर फिक्स्ड, अभी हैंगिंग हो गया। सो ये सब सहूलियत हम फार्मर को दे रहे हैं, जिससे वो उसको जब वो खेती कर रहा हो तो उसको वो टायर्डनेस फील ना हो। अगला आपने यहाँ पे ये भी बताया कि 61 हॉर्स पावर है, 4 सिलेंडर है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरी बात आ जाते हैं, इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। हाँ जी। और हाईएस्ट इंजन वॉल्यूम सीसी इन दिस कैटेगरी। यस। तो ये क्या बाकी ट्रैक्टर, यही फीचर इनको बाकी ट्रैक्टर से अलग बनाता है या इसमें क्या था? नहीं, तो मैंने जैसे कहा आपको कि 4 सिलेंडर इंजन है, 4000 सीसी प्लस है, और सब जो इसकी कंपटीशन है 3 सिलेंडर इंजन है टर्बोचार्जर के साथ है, ठीक है। और जैसे टर्बोचार्जर आती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में वेयर एंड टेयर कम है, लाइफ ज्यादा है, ओके। और जैसे सीसी आपकी पावर जो और बैकअप टॉर्क जनरेट करती है, वो फार्मर के लिए बेनिफिट है।
सो एक पॉजिटिव्स जो है और नेगेटिव जो ये इसके टर्बोचार्ज इंजन है, कॉस्ट इज हायर ऑफ मेंटेनेंस बिकॉज़ टर्बोचार्जर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो मोस्टली इंपोर्ट होती है। तो कोई मैन्युफैक्चरर, देयर आर ओनली 2 मैन्युफैक्चरर्स हु गिव नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो हम लोग हैं और वहां दे अदर मैन्युफैक्चरर्स। सो ये हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म पर ऐसा इंजन दे रहे हैं जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट है और लॉन्गर लाइफ। सर आपके इसमें हाँ ये भी आपने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले की सिंक्रो में ट्रांसमिशन विद सिंक्रो शटल एक फीचर है जो आपके लेटेस्ट ट्रैक्टर में बाकी शायद ट्रैक्टरों में नहीं डाला है, या मतलब इसके बारे में आप क्या? तो इस यूनिक ऑफरिंग हमारा जो है 12+12 फॉरवर्ड एंड रिवर्स में हाई लो मीडियम में जो है is available only in our tractor in this entire class. Either people have 24x24 जो काफी it's not required for India. It's a highly featured tractor which is required in foreign countries क्योंकि लैंड एकरेज ज्यादा है, यहाँ पे वो लैंड एकरेज ज्यादा नहीं है, उसके लिए हमने 12x12 लिया था। So 12 forward 12 reverse with levers, speeds are the same for forward and reverse. So high, medium, low. ये फीचर आपको कहीं भी कोई भी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी। इससे क्या फायदा हो रहा है कि जैसे मैंने आपका 3-4 एप्लीकेशंस हैं जो बहुत क्रिटिकल है इस स्पीड्स के लिए, व्हिच इज हैप्पी सीडर एंड सुपर सीडर एप्लीकेशन व्हिच इज सीड्स जो ना, और एंड पीछे पीडीओ एप्लीकेशन लाइक फ्रंट लोडर एंड डोजर। सो दीस आर द थिंग्स व्हिच एंड कमर्शियल एप्लीकेशन है जिससे जो ये गियरबॉक्स से फायदा होगा आपको चलाने में। सर तो आपके ट्रैक्टर में मैं पूछना चाहूँगा, मतलब एक किसान है वो कितना मतलब डीजल या क्या मतलब कितना उसे लगता होगा एक दिन भर में खेत को निकलने में, या बाकी ट्रैक्टर से इसमें भी आप लोगों ने कुछ? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज़ वो यूसेज पे इस्तेमाल होता है, उसका एप्लीकेशन पे इस्तेमाल होता है। As I said, we are fuel efficient as compared to competition. अब और हमने हमारे जो एनालिसिस है वो 12 से 15% we are fuel efficient. So and finally, क्योंकि अभी तो ये हमने लॉन्च किया है, okay, this is at the test stage, right? जैसे ट्रैक्टर इस्तेमाल होंगे, जैसे लोग एक्सपीरियंस करेंगे, we will come to know more and we'll share with you. Final, जैसे मैंने कहा, most important thing is cost of ownership. Cost of ownership माने कि आप कितना खर्च कर रहे हैं फ्यूल में, आप कितने खर्च कर रहे हैं स्पेयर पार्ट्स में, आप कितने खर्च कर रहे हैं मेंटेनेंस में, आपको क्या प्रोडक्टिविटी मिल रही है, बिकॉज ये जो आपके पास हायर हॉर्स पावर है, हायर टॉर्क बैकअप टॉर्क है, आपके पास नेक्स्ट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू हायर पुलिंग पावर एंड द एप्लीकेशन, आप कितने पैसा ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो ये अगर फाइनल जो खाता होता है क्रेडिट एंड डेबिट, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे फार्मर क्या पाता है, इससे हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएगा कि ही इज बेटर ऑफ देन अदर फार्मर्स। और सर क्या ये ट्रैक्टर एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब पोल्यूशन? इट हैज टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज़ टुडेस आज के एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से वी हैव टू बी वेरी एडहेरेंट टू एमिशन नॉर्म्स, तो वी आर देयर। जस्ट टू शेयर विद यू, हमने जो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात जो कही, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 25 कंट्री को। Each of these countries are governed by norms, okay, and this not only when you say environment in the world consists of emission, global carbon footprint, हाँ global, right? Second thing is noise, which is decibel noise, ठीक है जी, माने आपका ट्रैक्टर 92 डेसिबल लेवल के ऊपर नहीं हो सकता है, right, जब ये चला रहा है। Third thing is safety, that means your tractor has to have ROPS, जो रॉप्स एक वेरी स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे आईएसओ होता है ना, यहाँ पे आईएसओ स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से ग्लोबल स्पेसिफिकेशन होते हैं, दैट इट हैज टू मीट दैट, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड द फोर्थ थिंग इज इट हैज टू बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो हम लोग जैसे ये बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी इन सिंक विद ऑल दोस कंडीशंस फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। सो और मैं अगेन आई कैन बी प्राउड टू से दैट आवर ट्रैक्टर्स जो हम लोग बेच रहे हैं in 25 countries are in sync with all these norms and conditions. तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल आप लोगों को भी ये धड़-धड़ जो ट्रैक्टर की आवाजें और पोल्यूशन को लेकर और इन सबों को भी नहीं सोचना होगा। जैसे जैसे समय और टेक्नोलॉजी बदल रहा है, वैसे वैसे ट्रैक्टर भी अपने आप मॉडिफाई हो रहे हैं। तो क्या आप बताएंगे कि इसमें मतलब अगर
रंग अगर किसान को देखना है तो क्या ये सिर्फ नीले या कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल होगा, मतलब वो भी एक तरह से आपने स्लीक डिजाइन जब बताया तो किसान भाई तो सोचे कौन से रंग। ट्रेडिशनली ट्रैक्टर्स दो कलर में बिकते हैं ट्रेडिशनली, नीला और लाल. Then John Deere came in with green. Okay. Then Kubota came in with rustish yellow or brown. So that is one of the. So globally अगर आप देखें तो 4-5 कलर ही normally accepted within the communities, right? I personally feel कि अभी वो farmers ने ये सोचा नहीं कि और क्या different color ले सकते हैं, right? So normally if you see a car which has a white or a silver or a red, tractors में today 80%, 90% of tractors will have blue and red. Okay. Then you have green. Okay. Then you have this is yellowish brown and very limited silver. Okay. So और blue में भी shades of blue हैं, dark blue, light blue, right? Different types of blue. So अभी I think no manufacturer will come out with any other color because they traditionally go on with these colors only. Okay, but as we see, as we are very open, okay, for colors, and as I said, the customer orientation जो हम लोग ने imbibe किया है और जो हमारे ACE के DNA में है कि हमें customer centric होना चाहिए, customer की बात सुनना चाहिए और customer की बातों को translate करना चाहिए फीचर में, जो हम करते जा रहे हैं. क्योंकि ये पूरी जो प्रोडक्ट्स आई है 25 साल से जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं इन ऑल दी वर्टिकल्स, बी इट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बी इट रोड एंड अर्थ इक्विपमेंट, बी इट हार्वेस्टिंग. मैंने आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया, आप केवल एस को ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर मत समझिए, क्योंकि हम लोग जब एग्रीकल्चर में हैं हम लोग हार्वेस्टर्स भी बेचते हैं. सो वी हैव द एस हार्वेस्टर्स, ओके, द एस हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग. Okay, we are literally in the top 3 manufacturers of the country. और ये भी indigenously developed है. We started off in 2014. Okay, all the rice growing states of India, which is AP, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, West Bengal, are using these harvesters. Today, this harvester is competing against the Chinese harvesters. Okay, we are technologically stronger than them. हमारी जो आउटपुट है इस हार्वेस्टर से मच बेटर. ओके, इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज मच हायर. सो सिमिलरली रोटावेटर्स, दिस इज इन हाउस. अगर आप टाइम मिलेगा तो वी कैन शो यू अराउंड पीछे. दीज आर रोटावेटर्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड टू बी कंपैटिबल विद दीस ट्रैक्टर्स, क्योंकि रोटावेटर के बिना कस्टमर फील्ड को जोत नहीं सकता. That is very critical. So this is indigenously and internally made. तो and और भी हम बना रहे हैं. So farmer को ACE complete solution provide करेंगे. ACE tractor ही. So हम लोग अगर आप पूरी manufacturers को देखो, हम लोग one of the complete manufacturers है जो end to end बनाते हैं. मतलब हम ट्रैक्टर भी बनाते हैं, हार्वेस्टर भी बनाते हैं और रोटावेटर्स भी बनाते हैं और रोटावेटर्स के अलावा और भी इंप्लीमेंट्स बनाने वाले हैं जिससे फार्मर को सहयोग हो, जैसे बेलर्स वास, हैप्पी सीडर वास. और रोटावेटर्स भी हमारे पास 8 to 9 वैरायटीज है डिपेंडिंग अपॉन सॉइल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट. कहीं लाइट चाहिए होती है, कहीं हेवी चाहिए होती है, कहीं डिफरेंट वेट चाहिए होती है. सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. सो फाइनली हम जो सोचते हैं वो फार्मर को सोचते हैं, किसान को सोचते हैं. किसान कैसे इस्तेमाल करने वाला है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करने वाला है और उसकी सहूलियत के लिए हम क्या प्रोवाइड कर पाए. तो ये तो बात हो गई आपकी ट्रैक्टर की. अब बात करते हैं सर एस की, जो आपने 30 to 90 HP ट्रैक्टर जिसमें किर्लोस्कर ब्रदर्स के साथ पार्टनरशिप करा और उसके बारे में आप बताएं, मतलब क्या किर्लोस्कर ब्रदर्स भी अपने ऑयल इंजन ग्रुप्स और इन सब चीजों में गेम प्लेयर है मार्केट में, बहुत बड़ा लीडिंग इंडस्ट्रीज. तो हाउ, मतलब कैसे किर्लोस्कर ग्रुप्स. See, Kirloskar is a very well accepted brand, a renowned brand, has been in India for more than 50 years, right? हम जब ट्रैक्टर्स में आए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि कौन सा इंजन एक्सेप्टेबल होगा कस्टमर. सो 2014-15 में हम किर्लोस्कर के साथ टाइप किए. 40% of our 40 to 45% of our capacity today जो ट्रैक्टर्स हम 30 to 50 horsepower जो मार्केट में दे रहे हैं वो किर्लोस्कर इंजन के साथ दे रहे हैं.
Okay, advantage of Kirloskar engine is की availability of mechanics, availability of parts, cost of parts. So finally जो customer जब उसको इस्तेमाल करता है और मेंटेन करता है, so उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है बिकॉज पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसानी हो जाती है, पार्ट्स की कीमत कम होती है और बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन उसको फायदा है। So हमारी रिलेशनशिप किर्लोस्कर के साथ ठीक चल रही है एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कंटेंट। तो हम भी इंजन बनाते हैं बट टुडे वी आर स्टिल फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन फार्मर हम स्टिल किर्लोस्कर इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द 30 to 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं जो 100 साल की कंपनी किर्लोस्कर एक ट्रस्ट जनरेट इसने करा है उसको। यस, और वो दूसरी कंपनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी वो इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कस्टमर को देखते हुए उसको आसानी हो जाती है मार्केट में मैकेनिक मिलने में, मार्केट में स्पेयर पार्ट्स मिलने में। सिर्फ अभी आपने कुछ एक्सपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे, तो मतलब आपकी कंपनी क्या सिर्फ इंडिया मतलब स्वदेशी है या बाहर भी लिमिटेड है, मतलब दूसरे देशों में या सिर्फ भारत में ही आपकी? नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मतलब कंपनी ऑफिसेस क्या है सिर्फ इंडिया में ही है या कंपनी के ऑफिसेस इंडिया में ही है बट हमारे डीलर्स हैं हम लोग 25 कंट्री में एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेचते हैं एज अ मोस्ट लाइक 5 मेन कंट्रीज में जिससे आपके बेस्ट डील्स होते हैं इंडिया में। सो I would tell you the area, not the country, because there are certain confidential things. Okay, हम लोग बहुत strong है साउथ ईस्ट एशिया में एंड सार्क कंट्री में। साउथ ईस्ट एशिया में बता ही दिया चलो जरा, और सार्क कंट्रीज में लोग देख रहे हैं नेपाल में, राइट? हमारी प्रेजेंस अगर आप देखें तो अफ्रीका में, अगर अफ्रीका को हम 3 जगह डिवाइड करें, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एंड नॉर्थ अफ्रीका, सो वी आर स्ट्रांग इन दीस प्लेसेस। लैटिन अमेरिका में भी आल्सो स्ट्रांग। Then you come to the other Arab countries जैसे Tunisia हुआ, यमन हुआ, we are also strong. अगले टाइम हम जब आपसे मिलेंगे next year में hopefully, I will also tell you that we are going to be putting up 2 assembly plants. Okay, we have got the approvals. Again, I will not like to name the countries, okay, because of confidentiality. So, and all those countries will be using Indian technology. Okay, so यही advantage है कि हम लोग यहाँ से transport कर रहे हैं technology into those countries. So the capacity and the capability of this organization to go abroad is phenomenal, is strong. तो अभी हम 25 कंट्री में हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज में होंगे, बट अभी जो न्यू ब्रेक थ्रू इनटू CIS कंट्री व्हिच इज ऑल दी रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ, जॉर्जिया हुआ, तो यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग हो जाती है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कैबिन चाहिए, कैबिन में हीटर चाहिए क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर -40 -50 डिग्री आती है, राइट? उसके अलावा उनको चाहिए होता है कि हर एक में सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम होनी चाहिए। ओके, सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम उनके स्टैंडर्ड्स ही अलग हैं, तो वो भी हम डेवलप कर चुके हैं। और आपको ये भी खुशी होगी, मैं एक्सपोर्ट से थोड़ा हट रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि इंडियन आर्मी ने टेंडर निकाला था some time back. Okay, ACE is one of the 3 manufacturers out of the 21 manufacturers who have been qualified for this tender, technically and commercially. Okay, so we are working with the army now in a उसको कहते हैं multi-purpose tractor, 75 horsepower 4-wheel drive, cabin के साथ cabin का रूफ उनको ऐसे चाहिए कि कुछ जब पहाड़ से बोल्डर गिरे या कुछ फायरिंग हो तो so everything is taken care of. So I'm saying that अगर आर्मी को ACE पे भरोसा है तो obviously ACE has that technology, ACE has that capability of giving in the Indian army a product for its use. और ये यूज केवल नॉर्मल कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, देयर आर वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस फॉर दैट, जैसे लेवलर हुआ, जैसे इन्होंने एक एस्फाल्ट के लिए दिया हुआ है या बैकहो के लिए दिया हुआ है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप और हम तो यहाँ बैठ के बात करें, बट जो यूजर है, जो एक इफ यू सी इंडियन आर्मी में यू हैव एक्सपर्ट्स, राइट, हु लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर थिंग कि वेदर कंपनी हैज द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, इनके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, इनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी और फिजिबिलिटी है कि नहीं। सो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि इफ वी आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द इंडियन आर्मी। सो जो रोबस्ट गाड़ी जो हम दे पा रहे हैं वो किसान के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इनके लिए हम दे सकते हैं तो हम
किसान के लिए तो obviously provide कर सकते the new technology and this thing. So this is the thing which I'm sharing with you कि जो कस्टमर मांगता है वो हम दे सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी है, वो हमारी कैपेबिलिटी है, वो हमारी R&D की एक्सपीरियंस है, हम इन हाउस बनाते हैं. We have a team of about close to 75-80 engineers who are working on all various projects. आपको मैं ये भी कि and the focus is make in India, make for the world. So अभी हम today we are doing the 6565 V2 launch. In the next 45 days, I'll invite you for one more launch of a small tractor. Okay, I will not share with you the details, but you will be pleased to find that we are opening a new segment not only for India, but for parts of the world where people need orchard tractor. Orchard tractor लोगों को चाहिए या farm garden tractor चाहिए लोगों को, वो हम लोग बना रहे हैं. वो भी indigenously developed है. And sir, in India, like which state, like you deal with all 28 states, and like which is the maximum say which state is like very we would love to deal with all the 29 states, but as of now, if you look at agriculture from our end, we are present in close to 16 states, but we are very strong in about 5 states. Okay, UP, MP. Okay, if you go to that side is Karnataka and Tamil Nadu, and this side is Bihar, Jharkhand. Okay, we are now trying to get back. There were lots of issues earlier, but now we are trying to get back into Haryana and Punjab. Haryana was also one of our very strong states 3 years back. Okay, there were some disconnects on products. Now we've been able to launch the 6565 V2. The launch itself has created enough excitement, and we've been able to create enough. जैसे हमने कहा 51,000 hits हैं. We already have lots of bookings. Okay. Last week ही हुआ है. The first tractors are getting delivered. Now physical deliveries are happening. So I personally feel कि I would be able to next time जब आपसे मिलेंगे और मार्केट शेयर और मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो I will be in a much better position to tell you कि बस कि we in these states are very strong. One more state, sorry I forgot, which is the Assam. Assam is one of the strongest. And because we work with a lot of government organizations, हमारे government departments में काफी tractors जा रहे हैं, so Assam and Northeast is also a very very strong state for us. So coming to the last question of the day, like how do you prioritize your daily tasks in the time of COVID-19 pandemic, and what is the biggest challenge you have faced in the period, or the company is facing, like certain insights, or like you were telling about you have seen the growth and the sale was rising, but somehow somewhere like a lot of organization has been like most have reduced their employees and still they are struggling with it to survive in the industries. So how you have managed it all and made it up? Okay, first thing I should say, by God's grace, the agriculture industry is one of the most one of the only industries other than consumer goods which has shown tremendous growth. So that's the first point. Okay. During pandemic time, हमारे 4 स्टेकहोल्डर हैं. हमारे स्टेकहोल्डर हैं कस्टमर, हमारे डीलर और डीलर एम्प्लॉय, हमारे ओन एम्प्लॉइज और फाइनेंशियल्स. ओके, 1.5 महीने all of us had a tremendous problem because of lockdowns. Okay, because यहाँ पे लॉकडाउन खुलता था तो वहाँ पे लॉकडाउन बंद होता था. ये 4 हुआ from the end of from the customer facing end. When you come to the supply chain continues to be a problem today because there are a lot of areas where labor has not come back. So manufacturers and small scale industries are not able to produce as per what the need is or as per the demand is. Number 2 is that अभी भी अगर आप देखते हैं तो काफी जगह लॉकडाउन्स कंटिन्यू कर रही हैं. ओके, वीकेंड्स में कहीं लॉकडाउन्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में लॉकडाउन है. तो जो मेजर चीज अभी तो फॉर्चुनेटली पीपल आर ऑल बैक. ओके, all of us are traveling, everyone is traveling. Okay, we are still governed by rules of the COVID, mask, distancing, right? But one of the key things जो हमें impact कर रही है वो है supply chain माने हमें parts नहीं मिल रहे हैं for assembly, time लग रहा है because of transportation delays. So this is a major challenge today. Demand is there, but supply chain is getting impacted. बट ये जो 3 महीने का कोविड का जो सिचुएशन इम्पैक्ट हुआ था, आई थिंक ये लोगों को डिसिप्लिन किया है, राइट?
more online meetings around, right? Microsoft Teams, Zoom, Geo Meets have become an order of the day, right? अभी हमारी reviews के लिए जाने की जरूरत नहीं है, right? We are able to now. So one of the key things what has happened is people have become more IT savvy. Work from home चल रही थी, अभी now people have started moving on because जब तक इंटरफेस कस्टमर और डीलर के साथ नहीं होता तो वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं होता और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता. सो एक तरह से वो चल रहा है, बट यस चैलेंज टुडे ऑन सप्लाई चेन, मेजर सप्लाई चेन चैलेंजेस व्हिच एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क आउट. बट आई थिंक as we go along, and जैसे मैंने कहा कि we should be happy कि this industry is doing extremely well and we've been able to ensure that the continuity of people is also there, jobs नहीं जा रहे हैं, so that is on. And we are now trying to employ more people. I can only tell you that. We are trying to employ more people and our teams are growing, the production teams are growing, the production is trying to increase capacities because the demand is increasing. Yeah, so that's great. So coming to the end, कि आजकल देखकर लगता है कि जब बड़ी-बड़ी कंपनियां किसानों के लिए सोचती हैं, आर्मियों के लिए सोचती हैं, तो कहीं लगता है लाल बहादुर का शास्त्री का वो सपना, जय किसान जय जवान, वो नारा, और प्रधानमंत्री ने जय किसान जय विज्ञान और जय आयुष्मान, इन सबको जोड़कर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज देश में जब कंपनियों, किसान भाई और आर्मी और इन सब क्षेत्र में जुड़ रही है, तो लग रहा है कि एक देश में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव है. और ये है. सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया.